this point, let's go across to a tweet that has been put out by the BJP IT Cell Chief Amit Malviya, who has slammed Congress President Sonia Gandhi, claiming that the Congress has appointed Jagdish Tytler as one of the 37 permanent invitees to the Delhi Pradesh Congress Committee. Now, Amit Malviya has also claimed that Tytler, who is an accused in the 1984 Sikh genocide there, and this is hypocrisy on part of the Congress party in making him as a permanent invitee to the DPCC. Now, these are the comments that are coming across when it comes to the appointment orders that were earlier issued by the AICC General Secretary Organization KC Venugopal, who had announced the elaborate Delhi Congress Executive Committee with nearly 87 members. And one of those members are said to be also Jagdish Tytler, who is the suspect in the 1984 anti-Sikh riots, as one of the 37 permanent invitees to the Delhi Pradesh Congress Committee. And that has now led off to a huge storm where the BJP is now questioning the Congress party. Straight away going across to Amandeep now. Amandeep, the BJP is now questioning the Congress party, saying that is the people of Punjab listening now? Well, exactly, Amita. The appointment of Jagdish Tytler for permanent 37 invitees for DCCC, basically that is directly hitting to the Sikh sentiment. Just because Jagdish Tytler is still accused of 1984 Delhi Sikh riots, and even he has not given the clean chit. And meanwhile, the entire Sikh community is all against Jagdish Tytler just because he was physically present at Trilokpuri as well as Tilak Nagar riots at that point in time. And in fact, now Congress party is ignoring all the Sikh sentiments, though they have their government in the Punjab, and Punjab is a Sikh dominated state. Just stay on with us, Amandeep. I'm told Manjinder Singh Sirsa ji is with us on the phone line. Sirsa sir, what do you have to say as far as Congress's hypocrisy? That is what the BJP is citing when it comes to the appointment of Jagdish Tytler as one of the 37 permanent invitees to the DPCC, sir. देखिए, मुझे बहुत दुख है, अफसोस है, क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इस लड़ाई को लंबे समय से लड़ रही है। जगदीश टाइटलर जैसे आदमी को कांग्रेस की वर्किंग कमेटियां किसी भी प्रोग्राम में लेके आना, ये बड़ा स्पष्ट संकेत देता है कि कांग्रेस 1984 के कातलों के साथ ही है और रहेगी। जगदीश टाइटलर, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं, आज भी सीबीआई को जो क्लीन चिट शीला दीक्षित ने इसको दिलवाई थी, तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने दी थी, उसके बाद हमारी रिट के ऊपर दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की इंटरवेंशन के ऊपर हमने जो विटनेस ला के दिए, जिनको पहले धमकाया गया था, उसके चलते वो क्लीन चिट विड्रॉ हुई थी। और आज जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस एक संदेश दे रही है। एक तरफ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाकर ये बात का इशू बनाती हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप वो दिल्ली के अंदर उसको क्यों बदल देते हैं अपनी सोच को? अगर आपको लगता है कि इंसाफ 1984 का अलग होना चाहिए और बाकियों का अलग होना चाहिए, ये जो आप बात दोगला चेहरा है, ये बड़ा स्पष्ट करता है कि आप सिलेक्टिव अपनी वोटों के लिए बात कर रहे हैं, आपको हमारे सिखों की चिंता नहीं है। और मुझे बहुत ज्यादा दुख इस बात का है कि जगदीश टाइटलर जैसा कातिल, उसको कांग्रेस की किसी भी कमेटी में डालने के बाद कांग्रेस के भी किसी दिल्ली के आदमी की आवाज ना निकलना, ये बात का स्पष्ट संकेत है कि वो इस राय के साथ अपनी राय रखते हैं कि गांधी परिवार जैसे सिखों की जख्मों पे नमक मिर्च लगाना चाहता है, तो दिल्ली की लीडरशिप भी यही चाहती है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने ये जो गलती की है, गलती तो नहीं की, जानबूझकर करते हैं। हम इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, ये जितना मर्जी उसके साथ खड़े होकर मैसेज देने की कोशिश करें, लेकिन बहुत जल्दी जगदीश टाइटलर और कमलनाथ दोनों लोग जो हैं, वो सज्जन कुमार के क्राइम के साथी, सज्जन कुमार के जेल में साथी बनेंगे। जी, क्योंकि सिरसा साहब, जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी है और उसके जो मेंबर्स है, बताया जा रहा है कि जो सीधा अप्रूवल है वो सोनिया गांधी की तरफ से आया, तो एक तरीके से उनको जानकारी थी, शी हैड द फुल नॉलेज अबाउट द मेंबर्स एंड द परमानेंट इनवाइटीज देयर सर। क्योंकि दिल्ली में अभी म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी होने वाले हैं, पर आपको लगता है कि सीधा तौर पे असर पंजाब इलेक्शंस में भी पड़ेगा? कांग्रेस तो वैसे ही बहुत मुश्किलों का सामना कर रही है पंजाब में। देखिए, मैं इलेक्शनों के असर और ना असर को नहीं देखता, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ,
आखिर हम भी एक इंसान की तरह इंसान हैं। जिन लोगों ने हमारा कत्लेआम किया, हमारी बहनों बेटियों के साथ बहुत बुरा किया, जब उन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, उन लोगों को प्रमोट किया जाता है, ऐसा कंट्रोवर्शियल आदमी, ऐसा कातिल जो है, ऐसा संभव ही नहीं है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी की जानकारी के बिना वो उसको कहीं भी लाया जा सके। हम इस बात का दुख है कि कांग्रेस इस काम को क्यों कर रही है, क्योंकि कांग्रेस मैसेज देना चाहती है कि किसी भी सूरत में टाइटलर हो या कमलनाथ हो, जब भी इनका केस पास आता है, मैं आपको ये भी जानकारी दूं, इसकी हियरिंग जो है वो चल रही है। जो कोर्ट है, जो स्पेशल कोर्ट इसकी है, उसके अंदर मेरा ख्याल, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, पर मेरा ख्याल 23 नवंबर डेट है इसके अंदर। तो अभी कांग्रेस का ये भी संदेश देने का तरीका हमेशा से रहा है कि जब भी कोर्ट में केस लगा हो, किसी न किसी बहाने से ये मैसेज दिया जाए कि कांग्रेस की हाईकमांड जो है इन कातिलों के साथ खड़ी है, ताकि कोर्ट कचहरियां भी एक बार फैसला देने से पहले सोचें। तो मुझे इलेक्शन से बड़ी इस बात की चिंता है, क्या ये इस बात का संदेश देने की कोशिश की जा रही है कोर्ट को कि आप इसके खिलाफ कोई संज्ञान ना लें, कांग्रेस की हाईकमांड, कांग्रेस की सोनिया गांधी परिवार या कांग्रेस के प्रधानमंत्री के दावेदार परिवार इनके साथ खड़े हैं? क्या ऐसा संदेश देने के लिए किया गया है? सिरसा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम टोल्ड सरदार आरपी सिंह इज आल्सो पैच विद अस। आरपी सिंह जी, ये बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पे ये ट्वीट आया अमित मालविया की तरफ से, बिकॉज दे आर क्वेश्चनिंग व्हेन इट कम्स टू दिस परमानेंट इनवाइटीज देयर ऑफ द दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमिटी एंड द अप्रूवल स्ट्रेट अवे कमिंग फ्रॉम सोनिया गांधी। Well, he claimed that the Sattler, who is on the record, said that he took Rajiv Gandhi along to take him along with taking him around the city after the horrific carnage happened, and to show that how much damage they have done to Sikhs. He's on record. There's a video on record. There's already complaint been filed on that on account. So it's very clear that with the blessing of the Gandhi family. Otherwise, how can he be the member of the working committee of the Congress party? Ji sir, thank you very much RP Singh ji for joining us here on the broadcast. So we're playing out multiple reaction and I'm told Harjeet Singh ji, who is the 1984 anti-Sikh genocide victim, is also patched with us right now. Harjeet Singh जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे हमसे बात कर रहे हैं आप अभी सर। लेकिन अगर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जगदीश टाइटलर का नाम जैसे ही आता है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनको परमानेंट इनवाइटी की तरह अब उनकी मेंबरशिप जारी रहेगी। जहां तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें तो अभी भी वो बहुत ही एक्टिव मेंबर कांग्रेस पार्टी के कहे जा सकते हैं। हरजीत जी, ये तो उन्होंने मतलब ठीक नहीं कर रहे, अपना गलत कर रहे हैं जी। वो इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए बजाय कि एक्टिव मेंबर बनाने के लिए। 84 में मेरे फादर को 3 नवंबर को इन्होंने माला अपना मर्डर किया था, वो ट्रेन से निकाल के मारा था। तो ये जो है अपना, इनको तो सजा मिलनी चाहिए बजाय कि इनको मेंबर बनाना। इसीलिए तो इनकी पार्टी सारी खत्म हो रही है जी, टोटली। जी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्या इसका असर पंजाब में भी पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को या नहीं, क्योंकि एक तरीके से हम सभी जानते हैं जिस तरीके की जो प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी को पंजाब में वैसे ही आ रही है, लेकिन अगर एक तरीके से धक्का लग सकता है, क्या आपको लगता है कि धक्का लगेगा पार्टी को जहां तक अगर जगदीश टाइटलर का नाम फिर से दोबारा आ रहा है? जी, जगदीश टाइटलर का नाम आ रहा है, वैसे भी इनको किसी ने सपोर्ट नहीं करना, ये तो है ही है जी। जगदीश टाइटलर को भी फांसी होनी चाहिए और इसको भी होनी चाहिए, दोनों को। असर पड़ेगा, ये हारेंगे टोटली। जी, सवाल इसमें उठता है हरजीत जी, क्योंकि अभी तक केस जारी है, केस खत्म नहीं हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, केस चल रहा है अभी तक और गवर्नमेंट भी सजा नहीं दे रही अभी तक इनको कोई पूरी। सबकी फांसी की सजा होनी चाहिए, इनको अपना मेंबरशिप इनको देनी नहीं चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने हमसे बातचीत करी। And we'll continue to track the story in detail as we are still playing out multiple reactions that are coming across on the fight over Tytler's appointment there in the Congress.